वॉइसेस, दो तरह के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. लेट्स अंडरस्टैंड दैम. Voice is that form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it. मतलब जहां पर सब्जेक्ट शो किया जा रहा है कि उसने ही सब कुछ किया है, दैट इज और एक्टिव वॉइस. और पैसिव होता है जहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, रवि ओपन द गेट. तो ओपन गेट किसने किया? रवि ने किया. सेकंड कहता है द गेट वाज ओपन बाय रवि. तो गेट के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज आया, पहले वाले में रवि सब्जेक्ट के ऊपर एम्फोसाइज था. तो पैसिव केसेस में सब्जेक्ट जो होता है बाई के बाद लगा दिया जाता है. दोनों का मीनिंग सेम है, बट फर्क इतना है कि पहले वाले में कहता है सब्जेक्ट ने कुछ किया है, दूसरे वाले में कह रहा है कि कुछ किया गया है बाय द सब्जेक्ट. लेट्स अंडरस्टैंड बेटर. Ram eats a mango. That is an active voice. Let's look at some more example. India will beat Australia in the semi-final. The mechanic is repairing the car. I will finish my work by tomorrow. We saw a movie yesterday. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्टिव वॉइस के, बिकॉज यहाँ पर आप देखो नॉर्मल टेंसेस चल रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. When we talk about passive voice, it is when its form shows that something is done to the person or the thing denoted by the subject. For example, पहले हमने पढ़ा Ram eats a mango. Now we are seeing a mango is eaten by Ram. तो हमने किया क्या, जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में हम लोग टेंस चेंज करते हैं, इसमें टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट में इज एम आर लग जाता है, पास्ट में वॉज वर लग जाता है, एंड सो ऑन. वील अंडरस्टैंड द रूल्स. So Ram eats a mango is eaten by Ram. The same way, if I have to make for India will beat Australia in the semi-final, then Australia will be beaten by India in the semi-final. The car is being repaired by the mechanic. My work will be finished by me by tomorrow. A movie will be seen by us yesterday. तो ये सब आपके पैसिव टेंस बन गए, ये यहाँ लिखे भी हुए हैं. Australia will be beaten by India in the semi-final. The car is being repaired by the mechanic. The work will be finished by me by tomorrow. A movie was seen by us yesterday. रूल्स क्या हैं? The rule number 1 says कब एक्टिव वॉइस टू पैसिव के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी होगा तब उसको क्या करेंगे, इज एम आर लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे. आई बाय द कैंडल इज बॉट बाय मी. ही डज नॉट लाइक मिल्क इज नॉट लाइक्ड by him. Do you eat fruits? Fruits के बारे में बात हो रही है, तो are fruits eaten by you. मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, we converted that to is mr plus third form of the verb. Then we have present continuous tense. तो करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ is mr आएगा, साथ में प्लस being लग जाएगा. वो verb हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म फॉर verb चलती है. Please remember that. Rahul is driving car. A car is being driven by Rahul. Are you riding the bicycle? A bicycle is being ridden by you. They are pulling the rope. The rope is being pulled by them. Everything is getting changed. It's easier than the direct indirect, I'll say. Present perfect tense, has have been लगाना है, third form of the verb लगाना है. He has taken my book. My book has been taken by him. She has finished her work. Her work has been finished by her. He has driven the car. The car has been driven by him. Everything is getting converted. सिर्फ सारा का सारा एम्फसाइज है वो चेंज कर दिया गया. सिंपल पास्ट टेंस को क्या करना है, वॉज वर लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है. शी ब्रोक द विंडो ग्लास, ये सिंपल पास्ट टेंस है आपका. व्हाट डिड इट बिकम? द विंडो ग्लास वाज ब्रोकन बाय हर. ही सोल्ड द हाउस. द हाउस वाज सोल्ड बाय हिम. आई लर्नड स्पेनिश. स्पेनिश वाज लर्नड बाय मी. दे आर वेरी सिंपल रूल्स, nothing which is very complex. Just one has to know that for once, and then it can be remembered for all lifetime. Past continuous tense आएगा, was verb लगाओ, being लगाओ, third form of the verb लगाओ. She was reading a book was being read by her. Was she cleaning the kitchen? Was the kitchen being cleaned by her? He was bringing some gifts were being brought by him. सिर्फ ध्यान रखो, वर्ब की फॉर्म कभी भी आईएनजी नहीं आ रही, चाहे बीइंग लग रहा है, चाहे आईएनजी लग रहा है, कुछ भी हो रहा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखने वाला. पास्ट परफेक्ट को क्या करना है, हैड प्लस बीन लगा के थर्ड फॉर्म द वर्ब लगा दो.
Rohan had completed the homework. The homework had been completed by Rohan. Rohan had not completed the homework. The homework had not been completed by Rohan. Had he completed the homework? Had the homework been completed by him? सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या करना है, विल शेल के साथ बी लगा देना है. हिज फादर विल बाय अ लैपटॉप विल बी बॉट बाय हिज फादर. माय अंकल विल ब्रिंग माय ड्राइविंग लाइसेंस. माय ड्राइविंग लाइसेंस विल बी ब्रॉट बाय माय अंकल. विल योर फादर पे योर हॉस्टल फी? विल योर हॉस्टल फी बी पेड बाय योर फादर? परफेक्ट फ्यूचर टेंस को कैसे करोगे? यू विल हैव डन योर होमवर्क विल हैव बीन डन. सेम थिंग, विल शैल हैव बीन लगा के थर्ड फॉर्म वर्ब लगा दो. सो सिंपल इट इज. इससे सिंपल क्या मिलेगा? You will not have done your homework will not have been done by you. Shall we have done our assignment? Shall our assignments have been done by us? The last, sorry, not the last, second last, with the modals. Can or could, again सिर्फ be लगाओ. Has to have to में be लगाओ. Must में be लगाओ. May be लगाओ. Might में be लगाओ. Modal जहाँ आए सिर्फ be लगा दो. That is all. I can do this work. This work can be done by me. I cannot do this work. This work cannot be done by me. Can I do this work? Can this work be done by me? Simple. I don't think I need to go through all them, I believe, because you guys are smart enough. I believe you guys can understand this. Riddhima has to complete the task. The task has to be completed by Riddhima. He must learn this language. This language must be learned by him. I may buy this toy may be built by me. We might play cricket. Cricket might be played by us. मतलब है ही क्या, बहुत सिंपल तो है. ऑब्जेक्ट पहले लिखो, मोडाल्स के बाद बी लगाओ, बाय लगाओ, वर्ब लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, बस खत्म. इतनी सी कहानी है. अब कई जगह क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जहां पे सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता. क्लोज द विंडो, इट्स एन ऑर्डर एक्चुअली. तो पैसिव में क्या होता है, लेट द विंडो बी क्लोज. तो हमें सिर्फ वहां पे करना क्या, लेट को ऐड कर देना. फिर वही दोबारा से ऑब्जेक्ट लगा दो, लेट द विंडो, और लगा दो साथ में बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वंस अगेन. ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन. Arrange your cupboard, let your cupboard be arranged. Get out of my office, you're ordered to get out of my office. Please do me this favor. Please means you are requested to do me this favor. अब इसमें दिस का दैट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे जैसे नरेशन में कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट्स मोर सिंपल. अब कई बार क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं. राधा ब्रॉट मी अ कप ऑफ टी, तो मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, टी भी ऑब्जेक्ट है. तो कैन बी आई वाज ब्रॉट अ कप ऑफ टी बाय राधा, या अ कप ऑफ टी वाज ब्रॉट टू मी बाय राधा, दोनों ठीक है. द टीचर टीचेस अस इंग्लिश, तो यहाँ पर भी अस भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है. तो आई कैन स्टार्ट विद वी ऑल्सो. वी आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, और वी कैन से द इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय द टीचर. इसके बाद आई थिंक यू गाइस हैव एन एक्सरसाइज ऑन एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इंडायरेक्ट. You guys can practice that and I'll take the doubts later on. Is this clear to us? Are we clear here? Are we clear with active passive? The exercise is with you guys. Please finish that.